बाय लॉस एनीथिंग। ठीक है, अभी हम लोग ने आई होपफुल नॉमिनल मेंबर तो पहले भी नहीं था, 2019 के पहले भी किधर था, नहीं था, नॉमिनल मेंबर निकाल ही दिया था लोग ने, बट 2019 में नॉमिनल मेंबर का डेफिनेशन ही हटा दिया, है ही नहीं, ओनली 4 मेंबरशिप्स आर देयर, so there is nothing called as nominal member. Don't get confused between nominee member and nominal member. Nominee is different, nominal is different. अभी nominal नहीं है, nominal मतलब पहले वो जो आप लीवर लाइसेंस वगैरह में रखते थे उनको भी मेंबर बनाने के लिए बीच में आया था 2013 के बाद में, वो भी अभी हटा दिया है, it is no more there. So there are only 4 memberships: member, joint member, associate member and provisional member. 4 ही memberships है। ठीक है, 154 भी I think we are more or less हम लोग का थोड़ा सा ग्रिप आ चुका है, बराबर? Yes, very good question. देखिए, आप अगर मेंबर का डेफिनेशन देखोगे, मेंबर का डेफिनेशन पढ़िए 154(b)(1) सब क्लॉज 18। Anybody can read? 18 है 19? 18 है ना? कोई पढ़े, एक कोई somebody? अमित जी? Member means a person joining in an application for the registration of a housing society which is subsequently registered, or a person deeply accumulated to membership of a society after its registration and includes and includes associate or joint or provisional. So member includes these 3 definitions. तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा एक it is a question of उसको क्या बोलते हैं हम लोग, it's a question of law का इंटरप्रिटेशन है। This particular subject matter मेरे ख्याल से थोड़े दिन में ये कोर्ट में भी शायद आएगा ये मैटर, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटीज में कंफ्यूजन है। एक अभी 154(b)(13) जो है उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कोर्ट में। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली 1 महीना पहले ऑर्डर दिया है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। सिमिलरली 154(b)(1) का भी आएगा, 100% आएगा। अगर किधर से नहीं आएगा तो हमारे तरफ से जाएगा, बट जाएगा ही, क्योंकि इसका क्लैरिटी आना जरूरी है। तो आपका क्वेश्चन का रेलेवेंस इसमें ही है कि मेंबर हैज अ पर्टिकुलर राइट, देन द ऑल राइट्स आर अवेलेबल विद द other 3 kind of members also. तो इसमें आपका क्वेश्चन से I am again putting another question. हमारे एक्ट में किधर भी नहीं दिया है कि whether the provisional member has the right to contest. कहीं पर भी नहीं है। वो बोलता है कि the joint member and the associate member can contest, but they are not spoken anything about the provisional member whether he can contest or not. So this interpretation will make it clear, if the member has a right to contest, then if the member includes all other 3, then the provisional member will also have a right to contest. तो जो rights member के पास है वो provisional member के पास है। अगर if the member is able to, देखिए ultimately member decide करने का किसके पास right है? The society does not have right to categorize somebody as a member. The member has to apply. A person has to apply for membership, and then depending upon his eligibility, the society will grant or not grant. So in this case, who will decide whether to make me as a provisional associate member or not? The member will decide. The member can change the associate member any number of times, or he can have multiple associate members. Not necessary that we can have only one member. I can have 3 associate members. Got my point? किधर भी restriction नहीं है ना। यहाँ पर बोला है कि you can have only 1 associate member, नहीं बोला है। So I can have 3 associate members. I can have 1 associate member only for attending general body meeting. I can have 1 associate member only for attending redevelopment related meeting. I can have another person for some other purpose. So इधर भी restriction कोई चीज का नहीं है। तो मैं समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपके पास 2 एप्लीकेशन आया, आप बोलोगे नहीं ऑलरेडी एक एसोसिएट मेंबर है तो इसको रिजेक्ट करता हूँ, गलत है। दूसरा एप्लीकेशन आया तो दूसरा मेंबर है, देयर कैन बी 1 2 3 मल्टीपल एसोसिएट मेंबर। आपका जब 12 रिलेशंस या 11 रिलेशन, यू आर द 12th पर्सन, द एप्लीकेट इज द 12th पर्सन, देयर कैन बी अदर 11 रिलेशंस। तो 11 एसोसिएट मेंबर बन सकता है, या 12 13 भी बन सकता है, आपका 2 भाई रहेगा।
One person can be an associate member, other brother can also be an associate member. Restriction नहीं है. दैट डजंट मीन मतलब फर्स्ट नेम पहला बोलते थे फर्स्ट नेम विल बी एसोसिएट मेंबर, बाकी का नो चांस. तो There is no first name, na. Every membership will have a separate application, and you will decide. The member will decide कि कौन से associate member को कौन सा काम पे कभी इसको हाजिर रखना है. These are all interpretation. मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कितना दूर तक हमको अपना सोच बढ़ा के ले जाना. He appoints two associate members, one for redevelopment and one for the normal. And those can be two different committee members also, like in managing committee and redevelopment. देखो, once a person is elected, then the main member himself loses all his rights. मैंने तो लास्ट टाइम बोला था वो. फिर उसमें उसके बाद में वापस एसोसिएट मेंबर अपॉइंट करने का राइट ही नहीं है ना उसमें. एसोसिएट मेंबर से पहले ही अपॉइंट किया और वो एसोसिएट मेंबर मैनेजिंग कमेटी में आया. पीरियड खत्म हो गया. फिर कौन अपॉइंट करेगा? और से साइमल्टेनियसली पहले ही एसोसिएट मेंबर दो डाल देते. बराबर है. देखिए, at any point in time, right? So at any point in time, only one member can be operative. Okay, that's what. So अगर already that member is present in the managing committee, then there is no other person who can have that right of being present in any meeting because managing committee already there. But you said redevelopment will be separate. देखिए, अपॉइंट कर सकता है, but कंडीशन क्या है? Those people should not be an elected person. अगर if that person becomes an elected person, then all other persons will lose their right because he is already present, elected representative. बाकी लोगों का काम नहीं रहेगा. Got the point? Clear? What if there is no specific लिखना पड़ेगा. Then you have to tell that person कि किसके लिए अपॉइंट किया, लिख के दे दो. एक्सेप्ट मत करो ना, आपके ऊपर है ना एक्सेप्ट करना. You are ultimately going to accept and give him the membership. So you have to tell him. Already आपने एक associate किया है, तो दूसरा आप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? करो, be specific. ठीक है ना? Any other questions? मतलब रीजन कैन बी एनीथिंग. सपोज दैट फर्स्ट एसोसिएट मेंबर इज ट्रैवलिंग, तो ही सेकंड विल अटेंड, ऐसा कुछ भी दे सकते. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब इंटेंशन इज टू Intention अटेंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. Intention is to maintain transparency. Intention is to have maximum attendance, and intention is to have a kind of any decision which is going to be arrived should be a collective decision. ये intention है. Cooperative movement का ही ये intention है ना. तो अगर principles हम कभी भी we are not going to go away from what the principle is telling. Principle, cooperative principle, cooperation and mutuality. ये दो principles तो है हमारे पास. उसी के अंदर सब कुछ आता है. You should never forget the main Basic. principle. Should always be that. Objects will always remain. When MC is already elected, whether additional members can be inducted in the MC. देखो, MC में election के टाइम पे फर्स्ट टाइम when the MC is elected, depending upon the number of seats available, you will elect those candidates or elect the members or elect the managing committee. अभी अगर आपका मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ फुल हो चुका है, तो ऑब्वियसली और किसी को आप ले नहीं सकते unless and until somebody resigns. ठीक है? But in the case if some seats are vacant and not being filled in the original जब भी आपका election हुआ था, तो at any point in time you can have by-elections. or if somebody resigns, you can have by-elections. तो by-election में आप किसी और को involve कर सकते हैं. So some members are telling that if you want to form any management to make more effective to talk with the developer and get the use. तो उसके हिसाब से अगर आपका 250 से up to 250 वाला सोसाइटी है मेंबर्स का, तो आपके पास एक वो ऑप्शन का भी एक दूसरा एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑप्शन. बट दैट कैन हैपन ओनली आफ्टर 2.5 years. अगर आपका कमिटी का 2.5 साल हो गया होगा, तो आप कोऑप्ट कर सकते हो. 2-3 लोगों को आपको रिजाइन कराना पड़ेगा. 2 ही कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं. 2 लोग को रिजाइन कराना पड़ेगा, जो आपको लगता है इफेक्टिव है उन दोनों को कोऑप्ट करना पड़ेगा. दैट ऑप्शन इज देयर. अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन. क्योंकि आपका ज्यादा लोग रिजाइन कर देंगे, कोरम से कम हो जाएगा, देन रजिस्ट्रार का आदमी आ जाएगा, वो भी देखना है. So you cannot fall below the quorum also. ठीक है? Anyways, so we will proceed now. तो 154B9 छोड़ के 154B छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल. जो 154B का सबसे पहला क्लॉज हमने देखा, सबके पास 154 है, प्लीज निकालिए थोड़ा.
154B में शुरुआत में एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस है ना, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसमें फर्स्ट वाला है शैल अप्लाई, फर्स्ट वाला शैल अप्लाई, फर्स्ट 154B सेक्शन जो 1 ऊपर से सब दिया है क्लास सेक्शन 1 क्लास 2 आपने देखा ना, तो ऊपर से लाइन से लिखा है, ये सब सेक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल है हाउसिंग सोसाइटी में। ये मत सोचिए कि खाली 154B हमारे लिए है, उसके एडिशनल उसको छोड़ के भी एप्लीकेबल है। जैसे कि आप सेक्शन 18 17 है, 18 है, सब सोसाइटी फॉर्मेशन का है, फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, जैसा कि 21 22 23 है मेंबरशिप का सेक्शन है। फिर आप नीचे आएंगे 72 73 आईडी नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, 73 आईडी। फिर उसके बाद 73C भी इलेक्शन का है, इलेक्शन रिलेटेड। फिर आप 75 76 77 ये सब रजिस्ट्रार के एक्शन के हिसाब से है। 77A अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर, एक्शन विद द रजिस्ट्रार। फिर इसमें आप देखेंगे 80 81 83 ऑडिट रिलेटेड, ऑडिट इंक्वायरी वो सब चीजें हैं। देन so on and so forth, everything goes away। फिर लिक्विडेशन, ये सब प्रोसेस है हमारे पास, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बट आप देखोगे नीचे नॉट एप्लीकेबल में बहुत सारा सेक्शंस आप देखोगे, ऊपर कम सेक्शन है कंपैरेटिवली, आप देखोगे नॉट एप्लीकेबल में दे आर नॉट अप्लाई टू हाउसिंग सोसाइटी। सो आपको कभी भी कोई भी चीज डिसाइड करना है कोई एप्लीकेशन के बारे में या एनी मैटर, एनी रिलेशन, एनी इश्यू, तो फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर दैट पर्टिकुलर इश्यू फॉल्स अंडर these particular sections, ठीक है ना। तो ये सेक्शन के अंदर अगर फॉल करता है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं है, your application you have made a proper application because this particular section is not applicable for housing society। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 73AAA में डाला, कोई भी ऐसा एग्जांपल 73B में डाला, तो 73CA भी जो लिखा है ना, आप देखोगे ऊपर भी 73CA है और नीचे भी 73CA रहेगा, क्योंकि 73CA का जो है ना सेक्शन, एक पर्टिकुलर सेक्शन एप्लीकेबल है, एक पर्टिकुलर सेक्शन CA ना इलेक्शन रिलेटेड है, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है, वहाँ पे एक सेक्शन जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए है वो थर्ड चाइल्ड का, बाकी सब एप्लीकेबल नहीं है हाउसिंग के लिए, खाली एक पर्टिकुलर एप्लीकेबल। तो उधर लिखा है अदर देन दिस प्रोविजन ऑल अदर प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर आप कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी डिसीजन या कोई भी आपको रेजोल्यूशन पास करना है, तो बी वेरी श्योर, क्योंकि हमको ये सब चीज याद रखना मुश्किल है। तो वी हैव टू कीप दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सेक्शंस रेफर करने हैं आपको, देखने हैं कि ये फॉल करता है हमारे लिए या नहीं करता। फॉर एग्जांपल 101 अभी नहीं है, वी ऑल नो 101 रिकवरी, सब लोग को वही मालूम है 101 अपने हाउसिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इफ समबडी gives an application और somebody बोलता है कि नहीं 101 का एक्शन लो, 101 का एक्शन ले ही नहीं सकते because that is not applicable। We have to go to 154B29 जो नया सेक्शन आया। तो ये सब चीजें सबसे पहले प्राइमरी हमको ये देखना कि क्या क्या सेक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल है और क्या नहीं, उसके बेसिस पे आगे बढ़ना। ये डेफिनेशन वगैरह तो हमने शायद इसमें जो देखा, इसमें जो है सब सेम है। नाउ वी विल गो टू सम वेरी स्पेसिफिक एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हम लोग को डे टू डे में काम आएगा, एज अ पर्सन रिलेटेड टू अ हाउसिंग सोसाइटी, एज एन एडवाइजर। अभी एक्ट तो आपके पास नहीं है, तो मैं आप लोगों को सेक्शंस बोलता हूँ तो आप लिख लेंगे क्या, चलेगा ना? मोबाइल में कर सकते हैं डाउनलोड, पर आपको अभी के हिसाब से मतलब सेक्शन कौन से सेक्शंस आपके लिए डे टू डे में काम आएगा, तो मैं सेक्शंस आपको बताता हूँ जो आपको 70 80 या मोर देन दैट 154 को छोड़ के आपको ये सेक्शन से आपका सोसाइटी रिलेटेड काम हो जाएगा आपको जानने के हिसाब।
सेक्शन 4 जो है, देखिए सबसे पहला कभी भी कोई भी एंटिटी है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जब हम बनाते हैं तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कब बनता है? When can you say that that particular society has been is existing or is a legal entity? When can we call that as a legal entity? When the society is formed and registered. And registration के बिना then there is no legal validity of that particular entity. कोई भी चीज, हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी यही बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसका लीगल ये नहीं है, यू कैन नॉट एनफोर्स दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। सिमिलरली इसका भी सोसाइटीज में भी रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको कोई भी वर्किंग के हिसाब से ले लीजिए, डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ले लीजिए, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, कोई भी चीज के हिसाब से ले लीजिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट रजिस्टर्ड इट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टैंडिंग। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सेक्शन 4 जो बोलता है which are the societies which can be registered. Not only our housing society, there are various other different categories of societies. इसमें आपका अगर immediately आप बोलें तो a cooperative bank is also a society. A credit society is also a society. Sugar mill is also a society. So all these come under the cooperative sector. So which are the societies which can be registered? उसमें section 4 will show that even a cooperative housing society is a society, is a entity which can be registered. So section 4 आप लिखिए, societies which may be registered. That is the section. मैं proper section ही बताऊंगा, पहले थोड़ा लंबा रहेगा, आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि एक्ट में जो लिखा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते. It has to be read as it is. ठीक है? Societies which may be registered is the section 4. Next is section 6. which talks about conditions for registration. अगर आपको सोसाइटी रजिस्टर तो होने के लिए आपका आइडेंटिफाई हो गया, बट थोड़े कंडीशन सैटिस्फाई करने पड़ेंगे. क्या क्या कंडीशन है? फॉर एग्जांपल इफ इट इज हाउसिंग सोसाइटी का सबसे मेन कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स. पहले था जो 154 आने से पहले था कम से कम 10 लोग चाहिए. 11 था एक्चुअली, मोर देन 10 लिखा था, तो कम से कम 11 लोग चाहिए. बट अभी 154 की आने के बाद में 5 लोग से हो सकता है. तो दैट इज अ कंडीशन, प्री कंडीशन. सो कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज 5. दूसरा कंडीशन क्या है हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करने का? पर्पस ऑब्जेक्ट्स तो है, बट मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ, कौन से कंडीशन के बेसिस पे सोसाइटी ये होगा? हाँ, ओनरशिप. ओनरशिप है, यू आर कमिंग क्लोज. कितने वाला ओनरशिप? ओनरशिप मतलब फ्लैट ओनर्स. हाँ, तो और आगे बताइए. नहीं, कन्वेंस और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं है. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं है. दूसरा कोई है, ओनरशिप बराबर है, बट कम और थोड़ा आगे बढ़िए. रजिस्टर्ड फ्लैट ओनर्स. रजिस्टर्ड फ्लैट ओनर क्या होना चाहिए? फ्रीहोल्ड का कोई जरूरत नहीं है, कैपिटल का कोई जरूरत नहीं है. नहीं, प्रमोटर है. There has to be somebody who is a promoter or a chief promoter who has to be designated. That is a precondition. ठीक है, but more importantly, there is one more thing. मैं 5 से रिलेट कर रहा हूँ. आपने बताया 5 लोग चाहिए. मेंबर्स. हाँ, मेंबर्स नहीं, कभी कोई मेंबर नहीं बनता. मेंबर सोसाइटी फॉर्म होने के बाद बनेगा. They are called as promoters. तो प्रमोटर में एक कंडीशन है. और आगे बढ़िए. कमिंग क्लोज. Common interest. हाँ? Common interest. Common? Interest. नहीं, कॉमन इंटरेस्ट नहीं. कंडीशन में कॉमन इंटरेस्ट नहीं आएगा. वो चेयरमैन फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. वो तो मैं बोल दिया ना, चीफ प्रमोटर. नहीं, हाँ. ओनरशिप में क्या है आगे? आगे क्या है? और वो और थोड़ा बढ़ना, आपको एकदम क्रॉस लास्ट लाइन में पहुंच गया. Majority of promoters have to apply. That is a precondition. अगर आपके पास वो सोसाइटी या वो बिल्डिंग में अगर 20 फ्लैट है और वो 20 फ्लैट में 20 फ्लैट का मेजॉरिटी नहीं बोलता है, एक्ट बोलता है जितने फ्लैट्स बिके हैं उस बिके हुए फ्लैट का मेजॉरिटी. और वो बिका हुआ फ्लैट, दो कंडीशन है, अगेन सब कंडीशंस क्या है? वन इज
total number of flats which have been sold have to be more than 50%. And out of the flats sold, promoters who are part of application for registration of society have to be more than 50%. 50% का 50%. समझा आपको या नहीं समझा? समझा? Sir, this applies to constructed flats. What about this comes together in rent from society? हाँ मैं आ रहा हूँ. I'll come to that. देखिए first point जो है ना, 5 members are required. That is the first point. आपका जो क्वेश्चन 5 लोग से मैं सोसाइटी बना सकता हूँ. वहाँ पे किधर भी फ्लैट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ लिखा नहीं. तो 5 लोग मिलके without even having any structure, you can form a society. That condition is already satisfied. मतलब 5 लोग आए, हमने डिसाइड किया कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना है. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बिल्डिंग होगा तो ही आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनेगा. 5 लोग मिलके एप्लीकेशन देंगे, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन करेंगे, उसमें से एक को चीफ प्रमोटर बनाएंगे. तो रजिस्ट्रार आपको सोसाइटी फॉर्मेशन का और रजिस्ट्रेशन दे देंगे. उसके बाद में आप वो जो लैंड खरीदो, फिर पैसा डालो, फिर कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करो, फिर बिल्डिंग बनाओ, फिर अलॉट करो, बात की बात. बट यू डोंट नीड अ सोसाइटी, अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ सोसाइटी. इसके लिए पहला कंडीशन क्या बोला है? 5 लोग ही चाहिए. उसमें बिल्डिंग नहीं बोला. बट द सेकंड कंडीशन इज दैट इफ यू वांट टू हैव अ सोसाइटी वेयर इट हैज अ बिल्डिंग, then in that case majority of the flats have to be sold. मतलब अगर 50 सपोज 100 है, 100 फ्लैट है वो वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या बिल्डिंग, और वो 100 फ्लैट में 51 फ्लैट्स मिनिमम सेल हुआ होना चाहिए. और वो 51 फ्लैट सेल होने के बाद में उसका 51% मतलब 26 या 27 लोग सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए. Then only you can have the bare minimum condition that you can apply for registration. Otherwise, आपका application reject होता है. So these are the preconditions. So condition of registration is section 6. ये आपका ना रूल्स में आएगा. मैं आपको रूल्स बता दूँ. रूल्स में आएगा. देखिए पॉइंट नंबर 6 सबसेक्शन 3 में आपको मिल गया नो फेडरल सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर हैज 5 सोसाइटीज. वो फेडरल जब आप फेडरेशन बनाते हो, फेडरेशन के लिए फेडरेशन एक है वो भी सोसाइटी ही है. तो वो भी कंडीशन अगर एक्ट के अंदर आओगे तो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज बताए. एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज एक पहला पहले एसोसिएशन ऑफ सोसाइटीज करके कुछ था नहीं. एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहले क्या था कि आपके पास अगर 7 सोसाइटीज एक साथ नहीं आते थे तो आप फेडरेशन नहीं बना सकते. अभी उन्होंने क्या किया, उसको 5 कर दिया. अगर आप 5 सोसाइटी एक साथ में है कोई लेआउट में तो आप एक फेडरेशन बना सकते हो. बट बहुत सारे सोसाइटीज ने बोला हमारे पास 5 नहीं है, हमारे पास तो 3 ही, तो हम फेडरेशन क्या कैसे करेंगे, कॉमन एरिया कैसा मेंटेन होगा. तो इसके लिए उन्होंने नया एक एडिशन डाल दिया जिसका नाम उन्होंने बोल दिया एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो कोऑपरेटिव 2 सोसाइटी भी अगर रहेगा तो भी वो दोनों का एसोसिएशन बन के वो दैट विल बी कॉल्ड एज द फेडरेशन कॉमन एरिया मेंटेनेंस. तो वो भी सोसाइटी ही है, उसका भी रजिस्ट्रेशन अलग से करना पड़ेगा. फेडरेशन विल आल्सो बी रजिस्टर्ड. फेडरेशन का भी सेम एप्लीकेशन देना पड़ेगा, सेम प्रमोटर्स जाने पड़ेंगे, सेम प्रोसीजर एकदम सिमिलर है. यहाँ के सोसाइटीज में रूल में है वो हर सोसाइटी से मेंबर्स नॉमिनेट होता है फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. लाइक आपका उसका एक रेशियो है फॉर टुवर्ड्स एवरी 25 मेंबर देयर विल बी 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सोसाइटी. अगर आपके पास 5 बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग में 100 लोग हैं तो हर सोसाइटी से 4 लोग जाएंगे रिप्रेजेंट करेंगे. और वो 4 20 लोग का एक जनरल बॉडी बनेगा. और वो जनरल बॉडी के अंदर से फिर आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, फेडरेशन का. दैट विल बी डिफरेंट एंड योर सोसाइटी एक्टिविटी विल बी डिफरेंट. दोस विल बी ओनली फॉर मेंटेनिंग द कॉमन एरियाज. सोसाइटी इज फॉर योर पर्टिकुलर बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ योर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. तो इसके हिसाब से 2 अलग-अलग एंटिटीज हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सोसाइटी एंड दैट विल बी आल्सो हैव द दोस आल्सो विल बी हैविंग द सेम कंडीशन. जो इसका है वो कंडीशन उसका भी रहेगा.
chairman of society can also be chairman of federation. Yes, उसका कोई restriction नहीं है. The same managing committee members can be nominated for the federation also, and they can become the managing committee member of the federation also. इसमें कोई there is no restriction. पॉजिटिव पॉइंट मतलब देखिए अभी जनरली फेडरेशन बनता है जितने भी कॉमन एरियाज है उसको मैनेज और मेंटेन करने, उसके सिवाय ज़्यादा रोल फेडरेशन का नहीं है. तो अगर सपोज यही अगर हम लोग एक सादा स्कूल पकड़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें बहुत सारे कॉमन एरियाज रहेंगे, जैसे इंटरनल रोड रहेगा, स्ट्रीट लाइट्स रहेंगी, या आपका जिम रहेगा, स्विमिंग पूल होगा, क्लब हाउस होगा, पार्क होगा, कुछ भी हो सकता है. तो ये सब कम्युनिटीज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता, तो सब सोसाइटी को बिलोंग करता. एवरीबडी हैज इक्वल राइट टू मेक यूज ऑफ दोस फैसिलिटीज. बट सोसाइटी, इंडिविजुअल सोसाइटी 1 2 3 4 5 में से एक सोसाइटी उसको क्यों मेंटेन करेगा? देयर हैज टू बी समबडी हु इज गोइंग टू मेंटेन दैट. सब सोसाइटी बोलेंगे वो भी कोई यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, मैं अकेला तो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अकेला क्यों उसको मेंटेन करूँ, मैं अकेला क्यों सर्विसेज इसका अगेंस्ट में लूँ. या फिर आपका एक मेन गेट है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपने बैरिकेड लगाया, यहाँ पे जहाँ आपने अपने एंट्रेंस के लिए कुछ कार्ड सिस्टम यूज किया, एकदम मेन गेट, तो वो तो कॉमन कम्युनिटी है, सभी गाड़ियाँ उसी से अंदर आता है. यू कैन नॉट हैव सेपरेट एंट्रेंस फॉर ऑल द 5 पीपल, 5 सोसाइटीज. तो दोस हु विल मेंटेन दैट? देयर हैज टू बी सम एंटिटी. दिस फेडरेशन इज नॉट लाइक, जैसा आपने बताया ना, ये फेडरेशन का कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं है. It is a superficial body. It is not a existing कुछ structure. Registrar need not be informed about it. Register plus register करके अलग से registration certificate मिलेगा. Same procedure has to be followed. वो भी society ही है. It is also a society. Federation is also a society. It is a common society consisting of all the societies which are there inside that. But suppose there are 10 societies in a big layout. Is it compulsory for all the societies to become the member of the federation? And the answer is no. Because becoming a member is always voluntary. And becoming a member is not, एक word हर समय मैं बोलता हूँ, membership is not compulsory. एक तो एप्लीकेशन के ऊपर और दूसरा मैं हर समय एक word बोलता हूँ. Membership is not ownership. No, is not ownership. नहीं, वो तो बात है. Membership is not automatic. Membership is never automatic. Membership is always through application. Never it is automatic. तो आप जबरदस्ती किसी को आपका फेडरेशन का मेंबर नहीं बना सकते. Unless and until he does not apply for it, he cannot become a member of the federation. Now the point comes, अगर 10 में से 2 सोसाइटी बोलता हमको नहीं मेंबर बनना है, तो कॉमन इम्यूनिटी क्या करोगे? They will have to pay. They will have to pay. They have to pay, but members सोसाइटी फेडरेशन का मेंबर नहीं है, बट सोसाइटी के अंदर के लोग बोलते हैं हमको वो वाला इम्यूनिटीज यूज करना है. रिजोल्यूशन में पास होता है तो भी मेंबर है वो ही यूज कर सकता है. बात बराबर है, बट सोसाइटी मेंबर ही नहीं है ना, हाँ तो वो यूज नहीं कर सकता. बट मेंबर यूज करना है. फिर चार्जेस लगाना पड़ेगा. मेरा क्वेश्चन अलग है. मेरा क्वेश्चन क्या है, 8-10 सोसाइटी है, 10 सोसाइटी में से 8 सोसाइटी फेडरेशन का मेंबर है, 2 सोसाइटी फेडरेशन का मेंबर नहीं है. तो वो 2 सोसाइटी के मेंबर्स, देखिए फेडरेशन का मेंबर तो सोसाइटी है, वो आपको अलग रखी. सोसाइटी के अंदर के मेंबर अलग है. सोसाइटी के अंदर के मेंबर को अगर कॉमन इम्यूनिटी यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. इंडिविजुअल कैसे फेडरेशन ज्वाइन कर सकता है? फेडरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? Society can form, whoever people are interested, they can form a society, cooperative society, and as a society they can join the federation. चलो, this is a very good solution. ये solution इनका मान्य है, चलो इनका एक solution है, but it may not be very easy to form a society within a society. हो सकता है, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी फॉर्म हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में 10 माले का बिल्डिंग है, 15 माले का बिल्डिंग है, उसमें से टोटल हर माले में सपोज 4-4 फ्लैट्स और टोटल 60 फ्लैट. आउट ऑफ द 60 फ्लैट
40 people feel that नीचे का जो सेक्शन है ना उसमें आएगा आपका सवाल का जवाब आएगा, इंटरेस्टिंग है। उसमें से आउट ऑफ 60 people 20 people से दैट हमको ये सोसाइटी का मेंबर नहीं बनना। एक करके सोसाइटी है जिसमें 60 फ्लैट्स हैं, वो A B C D E F बहुत सारे सोसाइटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ए वाला सोसाइटी का आउट ऑफ 60 फ्लैट ओनर्स, मेंबर्स नहीं बोलता हूँ, 60 फ्लैट ओनर्स, 40 यू नीड हाउ मेनी पीपल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी? 5 है, 31 मिनिमम 5 है, इस केस में 31 है ना, 60 फ्लैट्स है तो मोर देन 50%। 31 लोगों ने मिलकर सोसाइटी फॉर्म किया, बाकी के जो उसमें से और बाकी 9 लोग बाद में आके ज्वाइन हो गए, क्योंकि सोसाइटी फॉर्मेशन मेंबर आपने मेंबर पढ़ा, मेंबर कैन either be at the time of application or he can apply after the society is formed and then also he can become a member। दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है 154(b)(1) सबसेक्शन 18, ठीक है। नाउ सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में 20 लोग मिले ही नहीं, सोसाइटी में गए नहीं, बोलता आपको मेंबरशिप, हमको तुम्हारा सोसाइटी का मेंबर नहीं बनता। मेंबरशिप ऑटोमेटिक नहीं है, मेंबरशिप जबरदस्ती नहीं ले सकते हो, मेंबरशिप इज ऑन एप्लीकेशन, ये सब चीजें फेल हो, नहीं बनना है मेरे को। तो उस समय पे आप क्या करोगे, क्या कर सकते, सॉल्यूशन क्या है इसका? नहीं मैं बोल रहा हूँ उनको ज्वाइन होना ही नहीं है, प्रपोज मेंबर तो हो सकता है, वो तो बाद में आएंगे। मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी का मेंबर ही नहीं बनना है हमको, दे डोंट वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? तो नहीं बनना है ना लीगल तुम्हारा सोसाइटी। हाँ तो वही पॉइंट विल गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेंबर हम लोग हर समय जो पढ़ते हैं या हर समय जब भी हम क्लासेस देखते हैं एक्ट का, तो हम लोग वी ऑलवेज अराइव एट वन पर्टिकुलर एट द एंड ऑफ रीडिंग ऑल, एक बॉटम लाइन आता है मेंबर इसके लिए हम लोग मेंबर बनाते हैं करके हर समय हम लोग कंक्लूड करते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? मेंबर किसके लिए बनाता है? हाँ मेंटेनेंस वगैरह, मेंटेनेंस के लिए, सिंपल मेंटेनेंस के लिए। मेंबरशिप बनाने का मेन मुद्दा हमारा है मेंटेनेंस कलेक्ट करके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ये हमारा मेन मुद्दा है। अभी उसमें से 20 लोग बोलते हैं हम नहीं आएंगे बनाने के लिए, तो जबरदस्ती तो उसको नहीं बना सकता है। बट हमारे एक्ट में अगर आप डिफॉल्टर का डेफिनेशन में जाइए 154(b)(1) डिफॉल्ट, somebody can read that 154(b)(1) मेरे ख्याल से 5-6 है क्या? 11 पूरा पढ़िए। Defaulter means a member of flat owner or occupier। एक मिनट यहीं पे रुक जाइए। A member or a flat owner or an occupier, तीन डेफिनेशन दिया है यहाँ। So what does that mean? A person who is either a member or a flat owner or an occupier can be declared as a defaulter. So if that person can be declared as a defaulter, when can a person be declared as a defaulter? If he does not pay. When can a person not pay? When you bill. When you bill, then only he cannot pay. When you can bill, when you have the right to bill. When do you have the right to bill? When he falls under any of these three categories. So society maintenance has been taken care by this definition. बराबर है? इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर कंफ्यूजन नहीं है। Whether he is a member, whether he is not a member, he will fall either of the other two categories, flat owner or occupier. मैडम को कुछ डाउट है? या you are lost? नहीं मैं वहाँ पे डिफॉल्टर में नहीं जा रहा हूँ। I am not going into defaulter definition. We'll come to that. अभी इसमें करेंगे तो we'll track change हो जाएगी। डिफॉल्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग करेंगे। 154(b)(29) में डिस्कस किया है पॉइंट, if I am not wrong. We have discussed this occupier point there also. So these three categories, तो आपका मेंटेनेंस तो उनसे 20 लोगों से लेने का हक है, भले वो मेंबर बने या नहीं बने। 20 लोगों से आपको बिल करके एज अ फ्लैट ओनर ऑफ सच एंड सच फ्लैट और एन ऑक्यूपायर ऑफ सच एंड सच फ्लैट करके आप बिल रेज कर सकते हैं।
और पैसा नहीं भरेगा तो डिफॉल्टर का हिसाब से आप उसके ऊपर एक्शन रिकवरी का भी ले सकते हो. दिस पॉइंट इज नो क्लियर. नाउ फर्स्ट पॉइंट तो हमारा टेकन क्या है? नो, बट दीस पीपल डू नॉट वांट टू फॉर्म द सोसाइटी. फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट इज दे वांट टू फॉर्म सेपरेट सोसाइटी. वेदर दैट इज पॉसिबल इज द मेन क्वेश्चन. एक सोसाइटी में 60 फ्लैट है, उसमें से 40 लोग एक सोसाइटी के मेंबर है, बाकी के 20 लोग बोलते हैं हमको अलग सोसाइटी फॉर्म करना, एक ही बिल्डिंग के अंदर दूसरा सोसाइटी. तो आपका जो क्वेश्चन था वो अभी वापस रिपीट होगा कि सोसाइटी फॉर्म करने के लिए तो बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, बराबर है. लोगों की जरूरत है. कितने लोगों की जरूरत है? 5 लोगों की जरूरत है. मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं 5 लोग जाके अप्लाई करूंगा, मेरा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है. बट यहाँ पे हमारे पास फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फ्लैट नहीं है. वी हैव टू अप्लाई, से दैट ऑन व्हाट बेसिस वी आर अप्लाइंग फॉर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन विद और विदाउट प्रीमिसेस. यहाँ पे हम लोग विदाउट प्रीमिसेस करके बोल नहीं सकते क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ प्रीमिसेस, वी आर स्टेइंग देयर. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन. Application for जो registration है, there is one section 8 which talks about application for registration. एक पेज नंबर नहीं, एक्ट का मैं बोल रहा हूँ, आप खाली लिखिए एक्ट का सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट. ठीक है. ये एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी के टाइम पे एज आई टोल्ड 51% हैव टू अप्लाई, अदर 51 may or may not, 49 may or may not come. Now attached to this particular registration there is one more section which is called as section 18 and section 17 or section 18. First section 17 is amalgamation, transfer, division, conversion of societies. Amalgamation, transfer, division और conversion. और section 18 जो है power to amalgamate, बाकी सब सेम है. power to amalgamate, transfer, divide, convert, ऐसा आप कर लेंगे. सेक्शन 17 इज अमालगमेशन, सेक्शन 18 इज पावर टू अमालगमेट. कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं. वही आप अभी मैडम आप बोलो, आपने काफी काम किया है मेरे साथ. ये डिफरेंस क्या है सेक्शन 17 और सेक्शन 18 का डिफरेंस क्या है समझने के हिसाब से? पीछे ऐसा है. अभी बहुत सारा रजिस्ट्रेशन किया है, अभी 3-4 महीने के अंदर 5-6 सोसाइटीज को अमालगमेट किया. उनको मालूम है फर्क क्या है दोनों में? सेक्शन 17 में डिवीजन जो एक सोसाइटी होगा उसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो सेक्शन 17 में, और सेक्शन 18 में जो अथॉरिटी जो होते हैं जो एप्लीकेशन जो करते हैं डिवीजन के लिए, तो उनको राइट होता है, उनको पावर होता है कि वो पावर के बेस पे वो डिवीजन करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करें. एक पॉइंट आपने छोड़ दिया बस 17 में बोलने के. देखिए 17 और 18 में क्या फर्क है? दोनों अमालगमेशन रिलेटेड ही है सेक्शन. सेक्शन 17 अगर आप देखोगे, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, ये विल टेक द सेम एग्जांपल ऑफ 60 मेंबर्स का सोसाइटी है. 60 मेंबर का सोसाइटी सेक्शन 17 में जाना मुश्किल है. सेक्शन 17 में जाना इसके लिए मुश्किल है क्योंकि अगर आप सेक्शन 17 का अमालगमेशन का क्लॉज देखोगे तो उसमें, मैडम यहाँ पे थोड़ा प्लीज, नहीं तो आप क्या है बताइए, मैं रुकता हूँ. मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता है बट फिर भी मैं, आप 10-15 लोग बात करेंगे तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता. अमालगमेशन के टाइम पे अगर आपका कंडीशन है व्हेन कैन द सोसाइटी बी अमालगमेटेड और डिवाइडेड, इस वाले हम लोग जो बात कर रहे हैं डिवीजन का बात कर रहे हैं. एक सोसाइटी इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सोसाइटीज. तो डिवीजन के हिसाब से एक प्री कंडीशन है. क्या कंडीशन है उसमें
कि उनका जो जनरल बॉडी है, उनका जनरल बॉडी में 2/3 of the total members have to be present in that meeting and they shall vote and in that they should have a simple majority so that the society is either amalgamated or divided. Section 17 बोलता है, ये आपने मिस किया। तो अगर वो वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा आपका तो आप उसको डिवाइड कर सकते या अमालगमेट कर सकते। तो इस केस में 2/3 कितना होगा 60 का 40 लोग सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि आप वो एजेंडा ले सकते हो। इधर तो 20 लोग हैं, बाकी के 40 लोग को बोलेंगे हमको तो दूसरा सोसाइटी बनाना नहीं है सोसाइटी के अंदर, तो हम मीटिंग में जाएंगे ही। अगर मीटिंग में गया ही नहीं तो उसको कोरम नहीं बना। वो स्पेसिफिक कोरम्स है। देखिए बहुत सारे ऐसे मीटिंग्स हैं जहाँ पे स्पेसिफिक कोरम्स है। आपने जनरल बॉडी मीटिंग जब भी कंडक्ट किया होगा तभी आपने ऐसा कोरम के हिसाब से आधा घंटा, आप अभी सबका रिसेंटली हुआ होगा ना अभी सितंबर में, तो आप लोग क्या करता है गिव टाइम, नहीं आया कोई तो जितने लोग हैं उसमें से हम कंडक्ट करते हैं। देयर इज नो कोरम आफ्टर अटेंडेंस, बराबर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम, बट देयर आर सम स्पेसिफिक मीटिंग्स जहाँ पे विदाउट 2/3 और विदाउट स्पेसिफाइड कोरम यू कैन नॉट कंडक्ट द मीटिंग। उसमें से एक है जिसमें से एक्सपल्शन ऑफ मेंबर का एक है, वो है 154(b)(23) में अभी आएगा। सिमिलरली रीडेवलपमेंट का जो डिसीजन लेना है उसमें 2/3 कोरम का रिक्वायरमेंट है। बायलॉस आपको अडॉप्ट करना है सोसाइटी का, उसमें 2/3 कोरम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये सब मेजर डिसीजंस, दिस आर ऑल मेजर डिसीजंस जहाँ पे जस्ट बाय सम फ्यू पीपल अटेंडिंग जनरल बॉडी यू कैन नॉट पास रेजोल्यूशन, यू कैन नॉट पास एनी काइंड ऑफ डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, स्पेसिफिकली ये बड़े डिसीजन के लिए 2/3 लोग रहना ही चाहिए। तो अगेन इन दिस आउट ऑफ 60 40 people have to be there, and even if 40 people are there, the others may not vote in favor of division, तो आपका रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं। बट सोसाइटी फॉर्म करना फंडामेंटल राइट है। अभी 2014 का अमेंडमेंट क्या बोलता है, सोसाइटी फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट, यू कैन नॉट डिनाई फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। किसी को अगर चाहिए कंडीशन आप बोलते हो 5 लोग चाहिए और दूसरा साइड से आप बोलते हो कि तुम्हारा राइट मैंने छीन लिया, जनरल बॉडी के पास उतना पावर आ गया कि मैंने जनरल बॉडी में लोग नहीं आते हुए इसका रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, इसके लिए डिबेट नहीं हो पाया, दैट कैन नॉट बी द केस। इसके लिए सेक्शन 18 इज प्रोवाइडेड। सेक्शन 18 क्या बोलता है, पावर टू डिबेट, मतलब सो मोटो पावर है रजिस्ट्रार के पास by making use of this provision of fundamental right and by the society obviously has to apply। ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन में उनको बताना पड़ेगा कि हमको क्यों चाहिए अलग सोसाइटी। And if the registrar is satisfied and you are able to satisfy the registrar that yes ये particular 1 2 3 4 5 चीजें हैं, रीजन है, उसकी वजह से हमको अलग सोसाइटी बनाना है, तो the registrar has to grant registration for a separate society। उसमें आपको 2/3 का मिनिमम कोरम ये वगैरह वगैरह उसका जरूरत नहीं है, इसके लिए वो सेक्शन 18 है। तो दैट सेक्शन रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट सेक्शन है, सोसाइटीज विच मे बी रजिस्टर्ड 4, कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन 6 एंड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 8, 4 6 8, ये अच्छे से याद रख सकते हैं, गिवन नंबर 4 6 8 will are directly it is relating to section 17 and section 18 of the act। ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख के लीजिए। हाँ, नाम का क्या होगा उनको डिसाइड करना पड़ेगा। जो 20 लोग अगर अकेला जाना चाहते हैं, अगर कोई सोसाइटी का नाम कोई ABC है ऑलरेडी, उनको वो सोसाइटी का मेंबर रह के भी उन लोग अलग सोसाइटी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 60 के 60 लोग ABC के मेंबर थे, फिर भी उसके अंदर से 20 लोग बोल सकता है अभी हमको ABC का मेंबर नहीं बनना, हमको XYZ करके अलग सोसाइटी बनना। तो उधर से भी बाहर निकल के रिजाइन करके वो सोसाइटी का मेंबरशिप से रिजाइन करेंगे, या नहीं भी रिजाइन करेंगे तो भी चलेगा। देखिए, क्योंकि ऐसा किधर भी बोला नहीं गया है कि आप 2 सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकते। यू कैन बिकम मेंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ सोसाइटी, तो आप वो मेंबरशिप रहते हुए भी आप दूसरा सोसाइटी का मेंबर बन सकते हो। वो भी किधर रेस्ट्रिक्शन है, ऑफिस बेरर भी हो सकते हो, 10 सोसाइटी का सेक्रेटरी हो सकते हो, किधर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक्स में है। कोऑपरेटिव बैंक्स में यू कैन नॉट बी
meet the board of directors for more than one bank. First there was पहला था 2013 अमेंडमेंट के बाद में निकल गया, 97 के बाद निकल गया। अभी आप कितने भी सोसाइटी में एट अ टाइम यू कैन बी चेयरमैन, सेक्रेटरी, इधर ट्रेजरर, एनी नंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हमारा बिल्डिंग में एक जन का चार्ट है, डिफरेंट सोसाइटी की चेयरमैन फॉर ऑल। Theoretically, वो तो फिर टाटा हो गया, उसका नाम टाटा है। ओए बिग मैन, 4 सोसाइटी का One चेयरमैन। building also can have 2 societies. Pardon? Single building can also have 2 societies. First floor, third floor, fifth floor, seventh floor can be a society. 2, 4, 6, 8 can be a society. Is there any example like एग्जाम्पल होगा। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल ऐसा है, मेरे पास एग्जाम्पल है 2-3, जहाँ पे 15 माले का बिल्डिंग है, वहाँ पे पहला 8 माला का एक सोसाइटी है, 9 से लेके 15 का दूसरा सोसाइटी, ऐसा 2-3 है मेरे पास एग्जाम्पल। क्योंकि क्या हुआ था, पहले ये सोसाइटी का पहला बन गया था बिल्डिंग, मतलब रीडेवलपमेंट वाला सोसाइटी था, रिहैब वाला पहला बन चुका। रिहैब बनने के बाद में ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो नहीं रहा था, तो इन्होंने सोसाइटी हमारा पुराना उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था सोसाइटी, हाँ, like 38 तक दिया है, परमिशन है, और बाद वो में सी- मिला ऊपर, बराबर। तो they can make मेरे क्या नहीं, तो परमिशन सीसी बाद में मिला, इनका सीसी पहले ही था, इनका बन गया, ओसी आ गया पार्ट ओसी, इसलिए ऑक्युपेट दे फाउंड द सोसाइटी। ऊपर बाद में जो आए उन्होंने बोला कि नहीं हमको अलग सोसाइटी, नया फ्लैट पर, तो ऊपर का 7-8 माले लोग नया खरीदा, नया एप्लीकेशन डाला, फॉर्म हो गया सोसाइटी। वो सब है ना, अलग अलग आपके पास परमिशन दिया है ना, फेडरेशन है। ये दोनों फॉर्म होने के बाद में ये दोनों का जो ये रहेगा कंट्रीब्यूशन, इफ यू गो टू वन इट विल गो टू वन, जो कॉमन है वो कॉमन ही है ना। अभी आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं, भले आप 15th फ्लोर में हो या 10th फ्लोर में हो, लिफ्ट चार्जेस तो आपका चेंज नहीं होने वाला है। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी आपका सोसाइटी के हिसाब से चेंज नहीं होगा, आपका स्वीपर चार्जेस तो चेंज नहीं होंगे, बट जनरल बॉडी अलग। both these societies will take decisions accordingly, but ऐसा है, we give the declaration there that at any point in time it should not be contradicting the objects of each another society. Right. Because objects will never be, can never be compromised. Objects of the societies, इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया है ना। ऑब्जेक्ट आपका अगर एक बार फिक्स हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट्स रजिस्टर आपको रजिस्टर करके भी नहीं देगा। ऑब्जेक्ट्स को अगर आप वायलेट करते हो तो यू कैन गो फॉर डी रजिस्ट्रेशन। सो यू हैव टू टेक, मतलब टोटलिटी में देखना पड़ेगा। आप ऐसे मतलब जस्ट फॉर दी फिजिकली आप मत देखिए कि ऐसा अरे ऊपर का लोग नीचे का लोग कैसा करेंगे, ऐसा नहीं। वो हो सकता है, देखिए क्या क्या पॉसिबल है वो पॉसिबल है, बट कैसा पॉसिबल है देयर इज अ डिफरेंट रूल टू फॉलो। You have to mention the purpose also. Why? Pardon? You have to mention the purpose also. है ना, सब कुछ है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या है सब कुछ। ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेन, सबसे मेन ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपका पर्पस आएगा, आपका रिक्वायरमेंट आएगा, आपका नीड आएगा, हाँ, आप क्या एक्टिविटी करने वाले आएगा, बायलॉज आएगा, एवरीथिंग विल कम अंडर दैट। और व्हाट, हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट मनी, हाउ आर यू गोइंग टू मेंटेन, एवरीथिंग विल कम अंडर ऑब्जेक्ट्स। प्राइमरीली वो पूछेगा ऑलरेडी एक सोसाइटी है तो आपको क्यों बनानी। देखिए ये बहुत सारे टाइम पे ये वाला कभी आता है रिक्वायरमेंट, जब एक बड़ा लेआउट में स्ट्रक्चर है, टावर फ्लैट है और बंगलोज भी है। आपने देखा होगा कि बंगलोज अलग से है और टावर फ्लैट्स अलग से है, तो इन दोनों का मेंटेनेंस को रिलेटेड थोड़ा मुश्किल होता है और कॉमन एरियाज भी थोड़ा कभी कभी मेंटेन करना अलग होता है, बट है एक ही लेआउट में। तो बंगला वाले जाके अलग से अप्लाई करता है कि हमको बंगला ओनर्स सोसाइटी में बहुत सारा जगह पे जहाँ पे दे नीड सेपरेट, एवरीथिंग हैज टू बी सेपरेट। उनको लगता है कि मैं बीच में ऐसा कुछ नोशनल डिवीजन रखूं और मेरा फैसिलिटीज एमिनिटीज में अलग रखूं। वो लोग इधर नहीं आएंगे, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट अलग है। हमारा मेरा 5000 स्क्वायर फीट का बंगला है, 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला है, 1+3 है, मेरा अलग है मेंटेनेंस। वो लोग भी बोलता है कि तुम्हारा मेंटेनेंस ज़्यादा होना चाहिए, तुम्हारा बड़ा है, बट बैला बोलता है नहीं हो सकता ज़्यादा, बैला बोलता है सबका इक्वल होना चाहिए। मैं वन रूम किचन में रहता हूँ वही टावर में, या 1 फ्लैट 1 BHK में रहता हूँ, साइड में 5000 स्क्वायर फीट का बंगला है, दोनों का मिसमैच है सोसाइटी का मेंटेनेंस का।
बोलता मेरा कचरा इतना निकलता, पूरा बिल्डिंग का कचरा एक बंगलो से निकलता एग्जाम्पल, तो स्वीपर को तुम जितना पैसा देते हो वो भी उतना ही पैसा देगा, मिसमैच। तो इन दोस केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे सेपरेट एंड दे फॉर्म डिफरेंट सोसाइटीज। शुरू में एक ही सोसाइटी करके उन्होंने फॉर्म किया हो, बट बाद में हम लोग देखे डिवाइड। दैट इज व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन गिवन, डिवीजन, amalgamation, conversion, etc. etc. In the list of acts applicable, the section 6 and 8 is not mentioned in the applicability and it is mentioned in non-applicable. मैं सोचा कौन बोलेगा, किसी ने नहीं बोला, मैडम ने बोला, तो 3 बार रिपीट कर रहा था, 6, 8, even even सब बोला, किसी ने नहीं बोला। हाउसिंग सोसाइटी के लिए मैंने क्या बोला, कोई भी मैं सेक्शन बोलूंगा आपको क्या करना है, 154B में जाके देखना है, वो मैडम ने देखा। 6 and 8 are not, 154B में जाइए। Shall not apply लिखा है, किसी ने नहीं बोला। मैं 3 times I indicated 6, 8, even देखो 6 पे क्या लिखा है, 8 पे क्या लिखा है, देखो एवरीथिंग रेट हो रहा है ना। तो अभी हमको अगर हमारा देखना है 6, 8 एप्लीकेबल नहीं है तो वेयर वी हैव टू गो, वी हैव टू गो टू 154B। 154B में जाइए। 154B में आपका 154B2 क्या बोलते देखिए, 154B2 रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आया, जो वहां पे नहीं था वो इधर आ गया, वहां पे एप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे आ गया 154B3। व्हाट इज B3? तो उधर एप्लीकेशन था, ये एप्लीकेशन इधर है, बराबर है। 154B2 and 154B3 are applicable for, ये चलिए 154B2 and 154B3 are applicable for cooperative housing। ठीक है, 4 है, 4 रहेगा, सोसाइटी उसमें भी रजिस्टर्ड है। अभी 18 भी आप देखोगे ना, 18 देखो आप, 18 एप्लीकेबल है क्या, देखो 18 है या नहीं है? 18 ये नहीं है, बराबर 18 है, तो 17 और 18 के थ्रू आप इधर एप्लीकेशन और सो मोड एक्शन, these societies can be bifurcated, मतलब amalgamated और divided। इसका मतलब क्या है कि एक सोसाइटी लेआउट के अंदर कितना भी सोसाइटीज होते हुए भी उसको और भी डिवाइड करके हो सकता है। नाउ क्वेश्चन विल अराइज कि लैंड कैसा डिवाइड होता है, अगर बहुत सारे सोसाइटीज है उसके अंदर लैंड कैसा डिवाइड होता है। 5 बिल्डिंग मिला के एक सोसाइटी था, बट अभी 5 बिल्डिंग बोल रहा है कि हमको अलग अलग सोसाइटी चाहिए, तो उसका लैंड भी तो डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि कन्वेंस अगर था उसका तो कन्वेंस सपोज फेडरेशन के नाम से होगा, कॉमन कन्वेंस। अभी ईच सोसाइटी बोलता है कि हमको अलग अलग सोसाइटी बनना और अलग अलग कन्वेंस चाहिए, तो फिर लैंड भी उसके हिसाब से बाइफरकेट करना पड़ेगा, लैंड को भी डिवाइड करना पड़ेगा। बट लैंड डिवीजन इज नॉट कवर्ड अंडर MCS। लैंड डिवीजन विल बी अ सेपरेट टॉपिक, वो MRTP एक्ट में आएगा, वो इसका और उसका संबंध नहीं है। आपको पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास जाके लैंड डिवीजन का आपको ऑर्डर सिविल कोर्ट में जाके ऑर्डर लेके आना पड़ेगा, होएगा, उसका भी होएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसका जितना आपका ऑक्युपाइड एरिया है वो उसमें भी 2 कैटेगरीज है, एक में अगर FSI पूरा आपका यूटिलाइज्ड है तो एक कैटेगरी में आएगा, अगर पूरा FSI वो प्लॉट का यूटिलाइज नहीं है तो दूसरा कैटेगरी में आएगा। तो अगर FSI पूरा खत्म हो गया, आपका यूज हो गया, आपने पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, तो आपका जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका प्रोपोर्शनेटली आपको शेयर मिलेगा। आपका RG निकालने के बाद 15% का एक रिक्रिएशनल ग्राउंड का एक रिजर्वेशन रहता है, मतलब हर प्लॉट में आपको उतना एरिया छोड़ना पड़ता है लेआउट में, उतना एरिया आपको छोड़ने के बाद में बैलेंस जितना है उसका आपका जितना कंस्ट्रक्शन FSI होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपको हर एक को अपना अनडिवाइडेड शेयर मिलेगा लैंड। अगर FSI बाकी है
तो आपको प्लिंथ और अपर टेनेंट एरिया मिलेगा हर सोसाइटी में। प्लिंथ का मतलब आप जानते हो क्या है? प्लिंथ मतलब जितना बेसमेंट है, बेस, और अपर टेनेंट एरिया मतलब सराउंडिंग मतलब जितना लिटबिट वो इसमें माड़ा वगैरह में बोलते हैं, बट अपर टेनेंट एक जनरल टर्म है। यहाँ पे एक बैर मिनिमम एरिया जो बिल्डिंग को लग करके जितना आपको ओपन छोड़ना है, खाली फॉर एग्जांपल फायर के लिए या फिर आपका कार का मूवमेंट वगैरह के लिए जितना आपको मिनिमम बैर मिनिमम छोड़ना, दैट इज अपर टेनेंट एरिया। तो बिल्डिंग प्लस प्लिंथ प्लस अपर टेनेंट एरिया का आपको कन्वेंस मिल सकता है if the FSI is not totally completely utilized. अपर टेनेंट सर, ये मास्टर प्लान के अंदर नहीं था क्या सर? हाँ, मास्टर प्लान जो बनता है उसमें मास्टर प्लान में डिवीजन नहीं दिखेगा। मास्टर प्लान विल ऑलवेज बी लेआउट ओनली, लेआउट प्लान ही दिखेगा आपमें। बिल्डिंग्स दिखेंगे, अगर आपने एमिनिटीज दिया तो एमिनिटीज दिखेगा, और पार्किंग दिया तो पार्किंग दिखेगा। मास्टर प्लान में इतना ही दिखता है। उसके बाद में जाके आपको अगर ये कार्रवाई करके अलग करना है तो आपको कोर्ट से जाके उसका पर्टिकुलर डिमार्केशन करके उसका फर्स्ट आपको सर्वे लेना पड़ेगा पूरा प्लॉट का, फिर इंडिविजुअल प्लॉट्स का हर एक फ्लैट का कितना कितना ऑक्युपाइड है वो लेना पड़ेगा, एफएसए का बैलेंस क्या है देखना पड़ेगा, क्योंकि एफएसए इम्बैलेंस नहीं हो सकता। एफएसए सबको इक्वली एप्लीकेबल, सबको मिलना चाहिए उतना पोटेंशियल। तो वो सब देखने के बाद में आप सिविल कोर्ट में जाओगे, एप्लीकेशन डालोगे, फिर उसके बाद में जो भी आपका डिमार्क ये करके होना है, क्या बोलते हैं, बाइफरकेट करके करना है, यू हैव टू बाइफरकेट। कोर्ट ऑर्डर से ही होगा, नहीं तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर एमसीएस। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दिया, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। सिमिलरली 21A जो है हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या, देख लो सबसे पहला है 21A। व्हाट इज मेंट बाय 21A? 21A इज डीरेजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज। जैसा रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज है वैसा 21A इज डीरेजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज। डीरेजिस्टर कब होता है? व्हेन यू डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ दिस कैटेगरीज। जो भी हमने प्री कंडीशन बोला है, बैर मिनिमम कंडीशन, उस कंडीशन या फिर आप ऑब्जेक्ट्स से बाहर हो जाते हो, बराबर है, या फिर आपका मिनिमम 5 लोग नहीं है, या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जितने सोल्ड थे उसमें 51% लोग, किसी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ कर लिया, मेंबरशिप विड्रॉ कर लिया। मेरे पास 51% था जब अप्लाई कर रहे थे, बट आज के दिन में मेरे पास 51 नहीं है, मेनी पीपल आर विड्रॉ, सो इट विल बी डीरेजिस्टर्ड, देन द सोसाइटी कैन नॉट विथस्टैंड ना, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सोसाइटी कैन बी डीरेजिस्टर्ड आल्सो। So at that point in time, the registration certificate will be cancelled and it will become null and void. क्योंकि आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्शन 10 आप देखोगे, सेक्शन 10 भी हमारे लिए एप्लीकेबल है, वो सेक्शन 10 से रह गया। सेक्शन 10 इज द एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का एविडेंस क्या है? व्हाट इज द एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन? Certificate is the evidence. Documentary evidence is the certificate which is issued from the registrar's office. That is the evidence. अगर आपका डीरेजिस्टर हो गया तो वो एविडेंस निकल जाएगा आपका, वो कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है, whenever a society is registered, उसका जो एंट्री है ना वो गवर्नमेंट गेसेट में जाता है। इसके लिए whenever you apply for any kind of registration, सबसे पहला काम जो होता है ना आपका नेम रिजर्वेशन का, you always identify one particular name for your society and you first apply for, before applying for registration you apply for name reservation, कि हमने एक नाम चुना है सोसाइटी का, वो नाम अब आपके पास अवेलेबल है या नहीं है करके हमको बताइए। अवेलेबल मतलब 1 किलोमीटर का होता है कंडीशन, within 1 किलोमीटर से they will not grant registration. What is meant by available? it is not used, it is not already there in the gazette. अवेलेबल मतलब गैसेट में ऑलरेडी ये नाम एंटर नहीं हुआ रहना चाहिए, वो चेक करने वो लोग क्या बोलते हैं 4-5 नाम दे दीजिए, वो 4-5 नाम में से अगर पहला वाला नाम ही अगर हो गया हमारा ओके तो पहला वाला दे देंगे, नहीं तो उसमें से दे विल चूज। तो बहुत सारा सिमिलर नाम से भी सोसाइटी अप्लाई करता है ना, दे विल नॉट ग्रांट। रजिस्टर में एंट्री नहीं, गैसेट में होता है, गवर्नमेंट गैसेट में जाता है। जैसा हमारा वो मैरिज वगैरह का नाम चेंज या कोई भी जैसा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जाता है वैसा ये भी गवर्नमेंट गेसेट में जाता है। सर डीरजिस्टर हुआ
होने के बाद द सोसाइटी इज़ नो मोर, तो ज़मीन का ओनरशिप इज सोसाइटी, तो व्हाट अबाउट दैट? तो वेंडिंग का प्रोसीजर चलेगा, उसमें वापस रजिस्टर अपॉइंट होगा, वो देखेगा कि ये एसेट्स क्या करना है, वहाँ पे ऑफिसर अपॉइंट होगा, जो पूरा जितना भी वो आएगा पीछे आएगा, लास्ट में है बल्क में अपना वेंडिंग का प्रोसीजर्स भी है, क्या होता है। Yes, again registration is also possible. That who will decide that? वो वही मैंने बताया, पीछे आएगा वो. Once it is deregistered, then it is taken over by the registrar. Somebody has to be the कोई ना कोई देखभाल करने वाला चाहिए ना. सोसाइटी आज के दिन deregister हो गया है, but आपने अचानक से अपनी मर्जी से रजिस्टर करो, अपने मर्जी से deregister करो, ऐसा नहीं चलेगा. There has to be some authority who is the caretaker. तो registrar will take over. रजिस्टर टेक ओवर करने के बाद में देन द रजिस्ट्रार विल डिसाइड कि किसकी वजह से ये डीरजिस्टर हुआ, और देन रिप्रेजेंटेशन हैज टू गो, हियरिंग विल हैपन, फिर इफ डिफेक्ट्स आर रेक्टिफाइड इट कैन अगेन बी रजिस्टर्ड, और कंप्लेंट्स हो गया तो कर सकता है. एन ऑप्शन आल्सो लाइक रजिस्टर सोसाइटी और कंपनी और समथिंग एल्स, एनीथिंग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मोरली अबाउट हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर. हाउसिंग सोसाइटीज ने ज्यादा इसमें प्रोविजंस दिया है, कंपनी का इसमें नहीं है. कंपनी का थोड़ा कंपनी एक्ट के हिसाब से भी होगा. So it can be again registered also, or if somebody कुछ बहुत ही कुछ adverse वजह से अगर डीरजिस्टर हुआ होगा तो वेंडिंग का प्रोसीजर में चले जाएंगे, ऑक्शन करके लैंड वगैरह बेच के क्या करना है, दैट विल आगे जाके हम लोग देखेंगे, वो भी है हमारा. तो 21A is deregistration of society. Now comes most important section of for और हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या सेक्शन है, हर समय सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है हमारे लिए, रजिस्ट्रेशन को ठीक है, सोसाइटी ऐसा बोल रहा है, बट एक बार बनने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेंबर. तो 22 इज पर्सन्स हु कैन बिकम मेंबर, हु मे बिकम मेंबर. देखिए मे लिखा है, देखिए मे क्यों लिखा है, पर्सन्स हु मे बिकम, इट इज नॉट मैंडेटरी. मुझे चाहिए तो मैं बन सकता हूँ, नहीं चाहिए तो नहीं बन सकता. 22 is persons who may become member. 23 is open membership. Open membership मतलब it is open for all, restrictive नहीं है. Section chapter 2 chapter 3 sorry chapter 3 में 22 और 23 24 जो है ना, वो अभी सिंपथाइजर मेंबर, नॉमिनल मेंबर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट. Shall not apply, shall apply. Section 22. Division board section. Shall apply and shall not apply. Section 22 दोनों में. मेरे को तो नहीं दिख रहा सेक्शन. सेक्शन मत देखो, मेन सेक्शन देखो. शैल नॉट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन वो अप्लाई एप्लीकेबल ही है, ठीक है. 24A लेकिन नॉट एप्लीकेबल, जो नहीं बोल रहा हूँ मत लिखिए. हाँ 24 भी नहीं है, 24A भी नहीं है. जो इधर 154B में नहीं है मैं वही लूंगा. अभी आप 35 में आए, 35 डायरेक्टली 35 इज एक्सपल्शन ऑफ मेंबर. एक्सपल्शन मेंबर एक्सपल्शन. सेक्शन 30 सेक्शन 35 में ये भी इम्पोर्टेंट है. विल रीड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35. क्या बोलता है, अ सोसाइटी में by resolution passed with a majority of not less than 3/4 change
देखिए उसमें 2/3 चाहिए था, इसमें 3/4 चाहिए, क्योंकि ये और बड़ा मामला है, क्योंकि मेंबरशिप इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो रिमूवल ऑफ मेंबरशिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो सोसाइटी में बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट who are present at a general meeting held for the purpose of expelling a member for acts which are detrimental to the interest or proper working of the society. When can a person be removed, expelled? When he is acting against, he is detrimental to the interest of the society, proper working of the society. अगर ऐसा कोई है, आप किसी को, बहुत सारे सोसाइटीज में ऐसा होता है ना कि मतलब एक बंदा दो लोग बहुत परेशान करते हैं, हर चीज के लिए लेटर, हर चीज के लिए एलिगेशन, हर चीज के लिए कंप्लेंट है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं। तो दिस ऑप्शन इज अवेलेबल विद यू इफ यू फील दैट दैट पर्सन इज रियली अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यू कैन इन्वोक सेक्शन 35 फॉर एक्सपेलिंग हिम एज अ मेंबर। ऑफ कोर्स उसमें 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, मतलब इट हैज टू बी सच अ स्ट्रांग केस कि अगर 100 लोग हैं वो सोसाइटी में, तो 75-76 लोग वो जनरल बॉडी में अटेंडेंस चाहिए। ये उतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा लोगों ने सोचा एक्सपेल करना तो एक्सपेल हो जाए, ऐसा नहीं। 75 people have to be present out of 100 and then simple majority के हिसाब से you can pass a resolution for expelling that person. Reason होगा ना, but reason will not be decided by the general body. General body will only initiate, provided मैं पढ़ रहा हूँ नीचे, प्रोविजो है इसका, ऐसा नहीं है कि जनरल बॉडी ने डिसाइड कर लिया 3/4 लोग आए, एक्सपेल्शन का रेजोल्यूशन पास कर दिया, अगले दिन से एक्सपेल, ऐसा नहीं है। पढ़ रहा हूँ, कमिंग डाउन, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी वैलिड, सुनिए, नो रेजोल्यूशन शैल बी वैलिड unless the member concerned is given an opportunity of representation. What is meant by opportunity of representation? Yes, but to he has to be given an opportunity in the general body first. जनरल बॉडी में पहला देना उसको बुलाएंगे, बोलेंगे कि आपको एक्सपेल क्यों नहीं करना चाहिए, then he will give his explanation which should be captured in the minutes. ऐसा नहीं है, that person should also be there in the general, उसके absence में नहीं, उसके presence, that person has to be present, 3/4 majority has to be there, questions have to be put, show cause to be given to him, he will explain why he should not be expelled, it should be part of your minutes. And then second condition is no resolution shall be effective unless it is approved by the registrar. मतलब सिर्फ आप आपके हिसाब से लेके मतलब नहीं बने, आप 35 यूज करोगे, प्रोविजन है, आप पावर दिया है, बट ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा ब्लैंकेट पावर है। आप रिजॉल्व करोगे, उसको खड़ा करोगे, पूछोगे उसको, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, and if the general body is able to prove that this is a fit case for expulsion, then they can pass a resolution stating everything, सब कुछ आना चाहिए resolution। आने के बाद then that resolution is sent to the registrar's office, रजिस्ट्रार को बोलेंगे हमने ऐसा ऐसा कर दिया है, then you आपका काम, आपका कार्रवाई शुरू करो। then the registrar क्या करेंगे, hearing लेंगे, there will be a hearing, again an opportunity will be given to you, principle of natural justice will be followed, वहाँ पे उनको बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद में hearing होगा, सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव एंड द एक्सपर्ट जिसको करना है आपको, डिजायरस जिसको बाहर निकालना है उसका, then the registrar will decide whether this person can be expelled. And there are hardly any cases in the state of Maharashtra जहाँ पे एक्सपेल हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्सपेल्शन इज नॉट वेरी इजी। एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में कोई टेररिस्ट निकला या फिर सच्ची में कोई अगर गलत उसने ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट कुछ किया होगा तो हो सकता है, अदरवाइज इट मे नॉट बी सो इजी। No member of the society who has been expelled shall be eligible for readmission for a period of 1 year from the date of expulsion. Expel होने के बाद में 1 साल वापस आ सकता है, he can reapply for, and सोसाइटी अगर लगता है कि उसको मेंबर बनाना तो बना सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, एक्सपल्शन जनरली होता नहीं। देखिए प्रोवाइडेड उसको भी प्रोविजन है, अगर 1 साल के अंदर भी आना चाहे तो रजिस्ट्रार को लिख के वो रजिस्टर के डायरेक्शन के अंदर उसके पहले भी अंदर आ सकता है। बट इसमें क्या है, बेसिकली ये प्रोविजन दिया क्यों है, ये इसके लिए दिया है कि मतलब एक डब्बा लग जाता है,
अगर आदमी सही में कुछ गलत काम करता है और उसको ये सेक्शन के अंदर एक्सपेल होता है और रजिस्टर का एक्सपेल्शन ऑर्डर आता है, तो वो एक बहुत बड़ा एक इशू है, पर्सनालिटी पे उसका एक इशू है, उसका इंडिविजुअलिटी अफेक्ट होगा। ताकि वो बहुत करते ना, आप जो भी कर लो मैं देख लूँगा, ऐसा वाला जो लोग रहता है ना कि आप काय कर भी जाओ, मैं सबको मैनेज करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। अगर सोसाइटी रियली फील्स कि दिस इज अ फिट केस, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और एक्सपेल करना चाहिए। लेट हिम गेट रीइंस्टेटेड, बट एटलीस्ट once he will come to know that उसने गलती किया तो एक रिफॉर्म होके वापस आएगा। ठीक है, डन? एनी क्वेश्चंस? सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, सर्व करना पड़ेगा और रजिस्ट्रार के पास जाएगा, हियरिंग होगा, 1-2 हियरिंग रिटन सबमिशंस होंगे, आर्गुमेंट्स होगा, एवरीथिंग विल हैपन। दोनों साइड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और उसके बाद में ही एक्शन लिया जाएगा। नहीं वो स्पेशल एजेंडा डालना पड़ेगा उसमें। एक्सप्रेशन का स्पेशल जनरल बॉडी होगा, मेंबर ने समझो रेज किया तो वो उसमें नहीं आएगा, विद परमिशन ऑफ। देखिए वो रेज करके लिया हुआ पॉइंट नहीं है, इसको एक्सप्रेशन का आपको शुरू से ही आपको एजेंडा बनाना पड़ेगा कि हम लोग एक्सप्रेशन का, क्योंकि उसमें आपको 3/4 का मेजॉरिटी भी सेम हो सब लिखा रहता है वहाँ। दैट रेजोल्यूशन अब जब आप नोटिस देते हो, वो नोटिस में ये सब लिख के जाएगा कि व्हाई इज दिस स्पेशल जनरल बॉडी बीइंग कॉल्ड, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, सबको बोलना पड़ेगा आप प्रेजेंट रहो, हम लोग इसका एक्सपेल्शन का एजेंडा लेने वाले हैं और इतना फोरम का जरूरत है, सब लिख के आप करोगे। तो इट इज अ प्री प्लान्ड, ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक से जनरल बॉडी में किसी ने उठा लिया एनी अदर मैटर में इसको एक्सप्रेस करो, ऐसा नहीं है। इट हैज टू बी थ्रू स्पेशल जनरल बॉडी। नोटिस पीरियड, what will be the notice period? स्पेशल जनरल बॉडी 5 दिन, 5 days notice is enough. Sir, SGM मतलब minimum 5 days. when we speak about quorum, it also includes members attending the meeting online. देखिए अभी ऑनलाइन का क्वेश्चन ऐसा है कि whether online is now allowed or not. As far as the post कोविड का जो नोटिफिकेशन है, जो कोविड खत्म होने के बाद में, कोविड में जब ऑनलाइन अलाउ किए थे, उसके बाद में एक नोटिस या सर्कुलर आया था कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कि अभी से ऑनलाइन खत्म, आपको ऑफलाइन ही अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई जनरल नोटिफिकेशन या जनरल सर्कुलर या गवर्नमेंट ऑर्डर कुछ आया नहीं उसके बाद में। बट क्या हुआ है, कोविड के बाद में लोग ने बोला है कि ठीक है, अगर आपने एक्सेप्शन को हटा के आपने ऑनलाइन एक बार अलाउ किया है, तो वो एक्सेप्शन को आज भी आप कर सकते हो ऑन अ रिक्वेस्ट। So some societies what they have done is they have approached the registrar and they have given an application कि हमारा सोसाइटी है, रिडेवलपमेंट में जाना है, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर है या स्कैटर्ड है या नॉट वेल है या अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, व्हाटएवर सीनियर सिटीजन्स है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो पा रहा है, तो दे हैव गिवन एन एप्लीकेशन। आई नो दैट सम सोसाइटीज, आई नो आई हैव रेड दैट ऑर्डर, सम सोसाइटीज हैव गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम द डेप्यूटी रजिस्ट्रार परमिटिंग देम कंडक्टिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो उस समय पे अगर आपको स्पेसिफिक आपके पास परमिशन है रजिस्टर, बिकॉज रजिस्टर के पास अथॉरिटी है ये देने का, ग्रांट करने का, तो उस समय पे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन करके आप फोरम फॉर्म कर सकते हैं, ओनली ऑन दोस केसेस, नॉट फॉर ऑल केसेस। सर दोनों भी आज में हो सकता है क्या, यानी 8 मेंबर से तो 6 का फोरम चाहिए, तो 4 मेंबर ऑफलाइन है और 2 मेंबर ऑनलाइन है, तो वही ना परमिशन के साथ। अभी वो कमेटी मीटिंग के लिए देगा क्या मुझे नहीं पता, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बॉडी मीटिंग फॉर टेकिंग मेजर डिसीजन। कमेटी के पास पावर नहीं है मेजर डिसीजन लेने का। अब आप कमेटी मीटिंग के लिए लेने जाओगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा। कमेटी मीटिंग में आई डोंट थिंक यू विल गेट अ परमिशन, बट 100% you will get a, you may get a permission if you have a genuine reason for why you want to have online and offline both, मिल सकता है। ब्रेक है, हाँ ले लीजिए,